Welcome to new video on values of different trigonometric functions. In this video, we are going to find values of trigonometric functions at different angles. For this, let's have a look on quadrants once again. एक बार फिर से देखते हैं quadrant system को, that how do we represent angles at different quadrants. So these are 4 quadrants. And now I am representing these axes as in terms of angles. This is 0 degree, this is 90 degree, 90 or pi by 2, same thing. This is 180 degree or pi radians, and here we have it is 270 degree or 3 pi by 2 in radians. This is 360 degree, means one complete angle is 360 degree, or in radian 0 degree or 0 radian, 360 degree is 2 pi radians. Now first thing is, how do we represent these values at different quadrants? This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. We have already discussed that which trigonometric functions are positive and which are negative according to quadrant. Add sugar to coffee, all positive. Sugar S, S for sine and cosec is positive. In third quadrant, add sugar to coffee, 2 means T for tan, tan theta and cot theta is positive, rest of all 4 are negative. And in fourth quadrant, C, C for cos, cos and sec is positive, rest of all 4 are negative. So we see that out of all these 4 quadrant, ये जितने भी 4 quadrant हैं, every trigonometric function is positive in 2 quadrant and negative in 2 quadrant. अगर sin theta की बात करें तो ये positive कहाँ कहाँ पर है? ये positive होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है? दिस इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. Similarly, if we talk about cos theta is positive in first quadrant and fourth quadrant, and cos theta is negative in second quadrant and third quadrant, and tan theta is positive in first quadrant and third quadrant. Tan theta is negative in second quadrant and fourth quadrant. Similarly, we can find for other cosec theta has same positive negative quadrant, sec theta has same positive and negative quadrant, tan theta has same positive and negative quadrant. तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव इन एग्जैक्टली 2 क्वाड्रेंट्स. 2 क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव मिलेंगे और 2 में मिलेंगे नेगेटिव. तो अब इस पॉजिटिव नेगेटिव का हमें ध्यान रखना होगा. अब एंगल्स पर आते हैं. दिस इज 90 डिग्री और वी नो दैट पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, and this is negative direction, means negative angle. So let's discuss first thing. Suppose there is one angle x, कोई भी एंगल x है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसको हम देखते हैं. इफ एनी एंगल इज x, इफ आई एम टेकिंग x एज एक्यूट एंगल, अगर x को एक एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाए और मैं यहाँ पर एक x को रिप्रेजेंट करता हूँ. Suppose I am representing an angle like here, like angle x radians, and here again same type of angle but in negative direction, तो ये माइनस x कहा जाएगा. तो अगर एंगल पॉजिटिव है, एक्यूट फॉर्म में है, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एंगल अगर नेगेटिव है, एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है. तो पहले एक सेट ऑफ फॉर्मूला तो यहीं से इसी कंसेप्ट पर निकलता है, इसी कंसेप्ट से फाइंड होता है दैट कॉस ऑफ माइनस एक्स इज पॉजिटिव
but rest of all are negative. So first concept comes out from this कि in fourth quadrant we know that cos theta is positive, we know that sec theta is also positive, and rest of the four trigonometric functions are negative. तो एक concept यहाँ से आता है that suppose we are given value or angle sin of minus x, cos of minus x, if we have to find tan of minus x angle, cot of minus x, sec of minus x और cosec of minus x. क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है. जब कॉस और सेक पॉजिटिव है तो कॉस का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा, सेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव हैं, इन सब के आंसर नेगेटिव आएंगे. सो साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, दिस इज माइनस टेन एक्स, cot of minus x is minus cot x, sec of minus x is plus of sec x, cosec of minus x is minus cosec x. ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हम मान के चल सकते हैं. नाउ सिंस दे ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट से लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वी नो दैट इन फोर्थ क्वाड्रेंट देर आर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट आर ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ जो cos x है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, sec x पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए इनके आंसर भी पॉजिटिव आए हैं. बाकी सब नेगेटिव हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट. तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि साइन का अगर कोई एंगल नेगेटिव है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस बाहर आ गया, लेकिन यहाँ माइनस बाहर नहीं आया. वैसे कोई अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं है, बस समझने के लिए आप कह सकते हो कि साइन के अंदर अगर माइनस एंगल है तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस में माइनस है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और सेक में माइनस है तो वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका माइनस साइन बाहर आ जाता है. आप ऐसे लर्न कर सकते हैं. बट बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एक्स है, जो भी एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जब होगा तो सेक और कॉस थीटा दे विल बी पॉजिटिव. तो इस वजह से ये जो क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पर ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं. दिस इज वन सेट ऑफ फॉर्मूलाज. तो इस पर बेस्ड हम कुछ वैल्यूज़, कुछ एंगल्स फाइंड कर सकते हैं. लाइक मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ. सपोज इफ़ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन माइनस 30 डिग्री. अब साइन माइनस 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले इस माइनस को बाहर ले आइए, माइनस साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस हाफ. सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस माइनस π/4. अब कॉस में माइनस आ गया तो माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाता है, इट बिकम्स कॉस ऑफ π/4. सो नाउ कॉस π/4 इज 1/√2. नाउ दिस वे यू कैन फाइंड एनी वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंगल्स. अगर कोई नेगेटिव एंगल है तो आप याद रख सकते हैं कि हमने क्या किया, साइन में तो माइनस बाहर आ गया, कॉस में वो पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इफ इट इज tan थीटा with tan of negative angle minus π/3, तो दिस इज 60 डिग्री. माइनस है तो माइनस विल कम आउट, माइनस बाहर आ जाएगा, और tan π/3 यानी कि 60 इज √3. ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया. सो दिस वे वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ नेगेटिव, या सबसे पहले नेगेटिव को कैसे एलिमिनेट किया, यूजिंग दिस सेट ऑफ फॉर्मूला. इन फॉर्मूलेज को हमें यूज़ करना है, एंड यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड वैल्यू. सबसे पहले नेगेटिव साइन को हटाना है, या कहें कि बाहर लाना है. सो दिस वाज सिस्टम ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस क्वाड्रेंट एंगल्स. इन क्वाड्रेंट एंगल्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं. हाउ दीज क्वाड्रेंट्स आर देयर इन एंगल टर्म्स. एंगल की टर्म्स में ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वाड्रेंट सिस्टम अगेन. We know that positive direction is anti-clockwise
and negative direction is clockwise. So if we represent any angle as simply theta or x, suppose it is acute angle, तो ये यहीं पर आएगा, किसी एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली एंगल इज रिप्रेजेंटेड एज 90 माइनस थीटा, 90 तो ये है, अब 90 से माइनस थीटा यानी कि इस डायरेक्शन में हम, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ अगर एंगल आता है 90 से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये यहाँ एंगल लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा. तो 90 माइनस थीटा, अगर थीटा को हम एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं तो 90 माइनस थीटा विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल माना जाएगा. थीटा एक्यूट था, वो मैं पहले बता चुका हूँ. सो 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 माइनस थीटा लिखा जाए या पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख देते हैं, बात एक ही है, बिकॉज 90 इज पाई बाय 2 इन रेडियंस. सिमिलरली अगर 90 प्लस थीटा होता, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 तो ये है ही, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इट बिकम्स 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट. 90 को या पाई बाय 2 भी मेंशन कर सकते हैं. सो पाई बाय 2 प्लस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल. नाउ 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 270, अगर 270 में कुछ माइनस किया गया यानी कि अगेन हम क्लॉकवाइज चल दिए, तो अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें एंगल लिखा जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 डिग्रीज माइनस थीटा, या फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा. माइनस क्यों, बिकॉज वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट इफ वी मूव पॉजिटिव डायरेक्शन, ये तो 270 है ही, 270 में कुछ प्लस किया, थोड़ा सा एंगल और आगे मूव किया, इट बिकम्स 270 डिग्रीज प्लस थीटा, या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. अब इन एंगल्स के अकॉर्डिंगली नाउ वी नो दैट विच एंगल बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट. इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं. एक लास्ट ये वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाता तो 360 भी माना जाएगा. 360 भी यही है, 360 मीन्स 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा. सो 2 पाई प्लस थीटा इज एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो दिस वे वी कैन हैव अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज. 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट. अब एक सेट ऑफ फॉर्मूला आपने किया हुआ है लास्ट क्लास में, 10th क्लास में, 10 साइन 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. ये सब आप 10th क्लास में कर चुके हैं. tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, cot 90 minus theta, these are complementary angles, this is tan theta. Sec 90 minus theta is cosec, and cosec of 90 minus theta is sec theta. ये जो आपके पुराने फॉर्मूले हैं जो आपने अभी तक कंसेप्ट किए हुए हैं, इसी पर बेस्ड हम करेंगे. दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल एंगल्स, जितने भी ये 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स हैं, ये सब 90 माइनस थीटा तो यहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो दे ऑल रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये जितना भी एक 6 एंगल्स का सेट है, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, आपने सिर्फ इतना ही किया हुआ है 10th क्लास में, अब हम इसके बियॉन्ड चलेंगे. 90 प्लस थीटा में क्या सिचुएशन होने वाली है, चेंजेस तो यही होंगे, यानी कि साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन, टेन विल बिकम कॉट, चेंजेस तो यही होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. बट प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होगा. ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी मैंने बताया था, ऐड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव. तो यहाँ साइन और कोसेक के आंसर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट पर मैं आ रहा हूँ. अब सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फर्स्ट इज साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड इज कॉस 90 प्लस थीटा, tan
90 डिग्रीज है, मैं डिग्री नहीं लिख पा रहा हूँ कई बार, तो आप समझ जाइएगा कि डिग्री है कॉट सेक 90 डिग्री, और 90 ना लिखकर π/2 भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है, कोसेक 90 या π/2 प्लस थीटा। दे ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैविंग एंगल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, और हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कोसेक इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब नेगेटिव होंगे। और चेंज किसके अकॉर्डिंगली होगा? चेंज विल बी अकॉर्डिंग टू आर प्रीवियस रूल जो हमने 10th में किया हुआ है कि साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन में बदलते हैं, टेन को कॉट में बदलते हैं, कॉट को टेन में बदलते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली हम इनको चेंज कर देते हैं। सो दिस वे इट बिकम्स कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको 10th वाले क्वाड्रेंट्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगर एंगल्स पता हैं तो ये हमें लर्न नहीं करना पड़ेगा। दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल, एंड साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल बेस्ड सिस्टम। तो ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स का चेंजेस। सिमिलरली नाउ वी कैन मूव ऑन टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ को अगर देखा जाए देन वी हैव थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली हेयर 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 डिग्री से माइनस किया गया तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं। इन सभी को अब हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट इज हियर 270 माइनस थीटा किया गया। इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। सो वी कैन डायरेक्टली पुट हियर टेन एंड कॉट एज पॉजिटिव साइन विद पॉजिटिव साइन, टेन और कॉट के आगे प्लस साइन लगा दीजिए और बाकी सबके आगे माइनस साइन, ऑल आर नेगेटिव, and values of these trigonometric functions will convert it to other trigonometric function as their complementary angle terms, means sine into cos, cos into sine, tan into cot theta, cot into tan theta, sec into cosec theta and cosec into sec theta. This is third quadrant based system. Now in fourth quadrant we see here it is 270 plus theta. अब ये 270 प्लस समथिंग, तो 270 प्लस समथिंग के लिए अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट पर आते हैं। दिस विल बी साइन 270 डिग्रीज प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव होगा और विच वन विल पॉजिटिव, सेक विल बी पॉजिटिव। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि वे यहाँ पॉजिटिव कॉस के आगे और यहाँ सेक के आगे पॉजिटिव लगा देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो हम एक्यूट में कन्वर्ट कर चुके हैं। हमें जो भी चेंज करना है वो यहाँ से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से। जब एंगल बड़ा है क्वाड्रेंट फोर्थ में तो ये एंगल हुआ, ये तो थीटा एक्यूट एंगल हमने लिया था, तो ये तो एक्यूट हो गया, तो इसको नहीं देखना है। हम राइट हैंड साइड से नहीं देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखकर प्लस या माइनस अप्लाई करते हैं। तो कॉस के आगे कॉस का जो आंसर होगा ये कॉस 270 प्लस थीटा, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट्स आंसर इज इन पॉजिटिव। कई स्टूडेंट सोचते हैं तो साइन है, इसको हमने पॉजिटिव क्यों किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं है, साइन तो एक्यूट में कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन से पहले तो कॉस ही था ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक इसका आंसर पॉजिटिव होगा। साइन का आंसर नेगेटिव, टेन का आंसर नेगेटिव, कॉट का आंसर नेगेटिव, कोसेक का आंसर नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नाउ वी हैव दिस लास्ट क्वाड्रेंट which is 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 इज इक्वल टू 0। लेट्स सी इट हियर, 360 तो यहाँ है, 360 यानी कि 2 पाई प्लस 0 करते हैं तो मीन्स वी आर मूविंग
हेयर, ये 360 प्लस थीटा आ गया, दैट मीन्स इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 360 प्लस थीटा, और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सो व्हाट कैन वी चेंज हियर, ये जितनी भी टर्म्स हैं, दे ऑल एंगल्स, ऑल दीज एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन, सो ऑल विल बी पॉजिटिव। एड शुगर टू कॉफी भी याद है, उसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो सारे आंसर्स पॉजिटिव आने वाले हैं, एंड दे ऑल विल चेंज हियर। नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पर साइन को कॉस में चेंज नहीं करेंगे। वाई? वी नो दैट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वैसे तो ये कंप्लीट राउंड का फर्क आया है, बट 0 डिग्री पर जो वैल्यू है वही 360 डिग्री पर वैल्यू होगी। तो इस बार अब ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली हैं। अगर 360 प्लस थीटा है, बट 360 तो 0 के इक्वल है, ये बन जाता है साइन 0 प्लस थीटा। तो साइन 0 प्लस थीटा क्या होगा? ऑब्वियसली सिर्फ साइन थीटा ही रह गया है, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि 360 तो 0 डिग्री के इक्वल है। सो दिस विल बी साइन थीटा, यहाँ चेंज नहीं होगा, ये कॉस थीटा रहेगा। दिस इज टेन थीटा, कॉट का आंसर कॉट, सेक का आंसर सेक थीटा, और कोसेक का आंसर कोसेक थीटा, बिकॉज 360 डिग्री इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री। तो 360 या 360 के हायर जो भी इसके मल्टीपल में होंगे, दे ऑल विल बी टेकन एज 0 डिग्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, दैट वेन एवर वी हैव 0 डिग्री और 360 डिग्री और इट्स डबल 720 डिग्री, और आगे चलते हैं तो 1080 डिग्री, और आगे देखें तो 1440, ये 360 के ही मल्टीपल हैं। कोई भी एंगल इनमें से आता है, दे ऑल आर इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 ही हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी हेल्प से हम काफ़ी क्वाड्रेंट के बड़े बड़े एंगल्स को भी फाइंड आउट कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंट्स अगेन इन अ डिफरेंट वे। अब एक अलग तरीके से, अभी हमने किया था कि दैट दिस इज 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। अभी हमने इसको यहाँ पर 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा से भी रिप्रेजेंट किया था, बट वी कैन हैव इट 180 विद रिस्पेक्ट टू 180 ऑल्सो। 180 से अगर कुछ कम किया जाए, यानी कि हम यहाँ आते हैं तो 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थोड़ा पॉजिटिव किया 180 में, तो 180 डिग्रीज प्लस थीटा इज ऑल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ देखें तो 360 माइनस थीटा इज ऑल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक एक और हमने जो लिए थे अभी इससे पहले, वो क्या क्या लिए थे? यहाँ पर लिया गया था फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा भी लिया गया था, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा भी लिया गया था, यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिया गया था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लिया गया था। बट नाउ अब हमने रेफरेंस एक्सिस बदल दिया है, वी आर मूविंग विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी कि 0, 360 और 180 और 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारे एंगल्स आ जाते हैं। एक ही एंगल, एक ही क्वाड्रेंट में हम एंगल को दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने अभी देखा। तो ये सेकेंड टाइप से अब हम करने जा रहे हैं। अभी हमने 360 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले किए, 360 का मतलब 0 है। जब 360 का मतलब 0 हो गया, तो इसका मतलब ये साइन 360 प्लस थीटा इज साइन थीटा, ये सेट अभी हमने किया। अब 360 माइनस थीटा को देखें। सपोज फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल दिया हुआ है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखें 360 तो 0 है, तो ये क्या रह जाता है? अगर यहाँ 0 हो गया तो ये हो गया साइन 0 माइनस थीटा। साइन 0 माइनस थीटा मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस में क्या हो गई सिचुएशन? ये कॉस 360 माइनस थीटा को देख लेते हैं। ये अगर हम 0 पुट कर दें तो ये हो जाता है कॉस 0 माइनस थीटा, एंड कॉस 0 माइनस थीटा मीन्स कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड किया। तो ये एक नया सेट ऑफ फॉर्मूला हम बना सकते हैं,
विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट 360। यहाँ देखें तो साइन साइन में ही रहा, कॉस कॉस में ही रहा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि व्हेनेवर वी चेंज एंगल्स विद रेफरेंस टू दीज एंगल्स, दिस और दिस सेट, चाहे इसके माइनस या प्लस में है, चाहे इसके प्लस या माइनस में है, मतलब अगर आप इस एक्सिस पर मूव कर रहे हैं देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो विल नॉट चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। लेकिन 90 और 270 का प्लस माइनस करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। इस एक्सिस में हमने सब चेंज किया, वो हमने अभी देखा था। लेकिन अगर 180 के प्लस या माइनस में आता है या 360 के प्लस या माइनस में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो साइन का आंसर साइन रहेगा, कॉस का आंसर कॉस रहेगा, टेन का आंसर टेन रहेगा। तो अब हम एक नए सेट के तरीके से, नए तरीके से इन्हीं क्वाड्रेंट को फिर से देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां हम देखें ये जो पहला सेट है, फर्स्ट सेट 180 माइनस थीटा। अब 180 से कुछ कम किया गया तो 180 minus something is in second quadrant, 180 plus theta is in third quadrant. Now let's have a look on these set. 180 minus theta means second quadrant, 180 से कुछ कम करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ था, माइनस किया गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। 180 प्लस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। सो नाउ वी हैव दिस सेट ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूलाज। 180 माइनस थीटा ये सब सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल हैं और 180 प्लस थीटा ये सब थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कोसेक इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज ऑलवेज पॉजिटिव, cot इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली इन सबको चेंज कर देंगे। प्लस माइनस लिख चुके हैं और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। 180 या 360 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, यानी कि tan का आंसर tan में ही आएगा। साइन को cos या cos को साइन नहीं बनाना, वो हम कब बनाते हैं जब 90 या 270 के प्लस या माइनस में आंसर आते हैं। तो इस तरह से ये सब आंसर्स आ गए हैं। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है अगर ये 180 या 360 के प्लस माइनस में है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर इस एक्सिस के प्लस या माइनस में कोई भी एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और इस एक्सिस के प्लस माइनस में कोई भी है तो वो चेंज होता है। 90 माइनस है या प्लस है, साइन कॉस में बनेगा, कॉस साइन में बनेगा, tan कॉट में बनेगा और कॉट tan में बनता है। सेम हेयर 270 माइनस प्लस है, यहाँ से प्लस में जाएं या माइनस में जाएं, अगर 270 के साथ प्लस या माइनस में है देन टी रेशियो विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और सेट रह गया है 360 माइनस थीटा, वैसे हम वो डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी उसको एक बार देख लेते हैं। साइन 360 डिग्रीज माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉट, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं। और इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स के एंगल्स में हम देखें कि 360 तो ज़ीरो होता है। अगर 360 को ज़ीरो रख दिया जाए तो फिर कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव, tan इज नेगेटिव, cot is negative, sec is positive, cosec is negative. Now will they change? No, they will not change, क्योंकि साइन ये माइनस थीटा ही हुआ, साइन माइनस एक्स is sin x only, cos will remain cos, tan will remain tan, cot will remain cot. Similarly we can write all this set of formula. अब ये सब आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री के प्लस या माइनस में कोई एंगल आता है, क्वाड्रेंट तो हम चेक करेंगे, उसके साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज लाना होगा। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ऐसे ही 270 के प्लस या माइनस में आता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो भी आपको चेंज करना होगा। इन दोनों में हमें चेंज करना होता है। सिमिलरली अगर 180 डिग्री के प्लस या माइनस में कोई एंगल है या 360 डिग्री के प्लस या माइनस में कोई एंगल है देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
आर नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज। बट प्लस या माइनस तो हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना ही होगा। जैसे 360 माइनस थीटा था, यहाँ चेंज नहीं हुआ, साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ये लगाना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अभी हमने डिस्कस किया था कि 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, या इसका और डबल कर दिया 720, 1080 डिग्री, 1440 डिग्री, या इसी तरह से जितने भी n टाइम्स मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज हैं, ये सब के सब 0 के इक्वल ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इसी के बेसिस पर अब हम एक नया सेट कोई भी फॉर्मूलेस कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज आई हैव साइन 720 डिग्रीज प्लस थीटा। अब साइन 720 है, 720 तो 360 का मल्टीपल है, यानी कि ये 0 है। इसको अगर 0 कर दिया जाए तो साइन 0 प्लस थीटा बिकम्स साइन थीटा ओनली, सिंप्लीफाई हो गया। नाउ इफ आई हैव tan theta with the tan with angle 1440 डिग्रीज प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, तो ये भी 0 हो गया, 0 प्लस थीटा, ये आ गया है tan थीटा। नाउ इफ आई हैव साइन 1080 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 360 का मल्टीपल है, तो इसको मैंने 0 डिग्री बना दिया, माइनस थीटा। अब ध्यान रखना है क्योंकि ये माइनस में है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये साइन के अंदर माइनस एंगल आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा में तो माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस थीटा हो गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस n टाइम्स ऑफ 360 प्लस थीटा, n टाइम्स, n इज एनी इंटीजर हेयर, तो ये सब 0 के इक्वल माना जाएगा। इट विल बिकम कॉस 0 प्लस थीटा विच इज कॉस थीटा। और एक एग्जांपल लेते हैं, कॉस अगर है 1080 डिग्रीज माइनस थीटा, ये तो 0 हो गया, तो कॉस 0 माइनस थीटा, बट कॉस तो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी होता है, फर्स्ट कॉस ऑफ माइनस थीटा विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, तो कॉस थीटा आंसर आ गया है। तो यहाँ पर जितने भी ये एंगल्स हैं जो हमने मेजर में लिखे हैं अभी, ये सब 0 के इक्विवेलेंट हैं। इसको रेडियन में भी आप लर्न रखेंगे, ये 0 डिग्री, ये 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज 6 पाई, दिस इज 8 पाई एंड सो ऑन, दैट मीन्स n multiples of 2 pi. So we can say all even multiples of pi, जितने भी ये 2n पाई हैं, दे ऑल आर, ये सब 0 रेडियन के इक्वल माने जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, बड़े बड़े एंगल्स वाली वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर पाएंगे। 2n पाई और मल्टीपल ऑफ 360 इज 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू कीप इन माइंड। इसी तरह से जो भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ आ जाते हैं, लाइक 2n प्लस 1 पाई या माइनस 1 पाई, दे ऑल आर इक्वलेंट टू 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। 2n पाई अगर है, ऑड मल्टीपल जितने भी हैं ये हम पाई रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसके बेसिस पर भी एक सेट फॉर्मूलेस का ले लेते हैं। साइन 2n पाई प्लस थीटा will be always sin theta and sin 2n pi minus theta will always be minus sin theta। ये 0 हो गया तो sin theta ही रहेगा, cos of minus theta is minus sin of minus theta is minus sin theta। ये तो एक चेंज हुआ सिस्टम में। अब इस 180 के मल्टीपल में भी हम देख सकते हैं। सपोज मुझे एक ऑड मल्टीपल दिया गया है साइन 5 पाई माइनस थीटा। अब इस साइन 5 प्लस माइनस थीटा, 5 पाई तो ऑड है, ऑड मल्टीपल सब 180 माने जाते हैं, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन थीटा माना जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मान लीजिए मैं इसके और टुकड़े कर देता हूँ, इसको स्प्लिट कर देता हूँ, 4 पाई प्लस पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई तो 0 है, तो यहाँ क्या रह गया,
ये हो गया साइन 0 प्लस पाई माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा ओनली। पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया साइन थीटा, चेंज भी नहीं होगा, पाई के रेस्पेक्ट में है। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर एंगल्स ऑल्सो, कोई और वैल्यू आपको दी है, हम उसी के अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। लाइक आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 7π/6। अब 7π/6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं साइन पाई प्लस π/6 में। पाई तो 180 है, 180 प्लस थीटा इस थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स नेगेटिव, और पाई के रेस्पेक्ट में ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता और 90 टू 180 टू 70 वाले में चेंज होता है। ये पाई है, ये 2 पाई है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। पाई प्लस या माइनस में नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा π/6। साइन 30 डिग्री है, -1/2 आ जाता है। तो अब हमें इस तरह से क्वेश्चंस को वैल्यूज़ पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस को करना होगा। हम डिफरेंट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं विच वी कैन यूज टू सॉल्व और फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़। एक एग्जांपल, साइन, इफ़ यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 300 डिग्री। साइन 300 डिग्री इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्रीज, या इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। अब दोनों ही केस में देखें 270 प्लस थीटा है या 360 माइनस थीटा है, एंगल तो एक ही है, हमने बस चेंज अलग अलग तरीके से किया है। दे बोथ लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव लगा दिया। 270 प्लस या माइनस यानी कि इस वाले एक्सिस में तो चेंज होता है, तो साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में 30। सेम हेयर 360 है, 360 यहाँ है, इस एक्सिस में चेंज नहीं होता है, तो फिर ये साइन का साइन ही रहेगा और एंगल जो भी था एक्यूट वो ले लिया गया साइन 60। नाउ कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। दोनों ही वेज से आंसर सेम आएगा और सेम आना भी चाहिए था, क्योंकि हम एक ही फंक्शन की तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक ही फंक्शन है हमारे पास साइन 300 डिग्री, तो सेम आंसर आया। करने का तरीका कोई भी हो सकता है, विच एवर यू लाइक, विच एवर यू फील कंफर्टेबल विथ। नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस 765 डिग्रीज। 765 डिग्री ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नियरेस्ट मल्टीपल्स को ध्यान में रखेंगे कि 0, 360, 720, 1080, 1440, इनके नियरेस्ट में ये कहाँ लाई करता है, 765 720 के पास में है, तो इसको हम 720 की हेल्प से स्प्लिट कर देंगे। वी कैन राइट इट एज 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 720 दे ऑल आर इक्वल टू 0, इसको 0 लिख दीजिए, इवन मल्टीपल ऑफ 360 है, तो 0 हो गया, तो ये हो गया है, सॉरी साइन नहीं है कॉस है, कॉस 0 प्लस 45 मीन्स कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये आंसर आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन -1410 डिग्री। अब ये साइन है माइनस है, साइन पहले माइनस को ही रिमूव करते हैं, साइन ऑफ माइनस इज माइनस बाहर आ जाता है, माइनस ऑफ साइन 1410 हो गया। अब ये 1410 नियरेस्ट किसके है, 1440 के नियरेस्ट है, सो वी कैन स्प्लिट विद हेल्प ऑफ दिस, साइन ऑफ 1440 से थोड़ा सा कम है, कितना कम है, 30 डिग्री कम है, बट 1440 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको 0 कर दिया जाता है तो ये हो गया है साइन, ये 0 है, -30, ये फिर से नेगेटिव एंगल बन गया, साइन ऑफ माइनस थीटा में माइनस फिर बाहर आना चाहिए, इट बिकम्स पॉजिटिव नाउ, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 10 ले लेते हैं, 10 1,110 डिग्रीज। 1,110 इज नियरेस्ट टू 1080, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1080 प्लस 30 डिग्री। नाउ दिस इज 0, 1080 1080 इज 0, सो 0 प्लस 30 डिग्री
tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये आंसर आ गया है। नाउ लेट्स हैव एन अनदर एग्जांपल। सपोज वी आर गिवन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ cot 1050 डिग्रीज, ये भी 1080 के पास में ही है। cot 1080 माइनस 30 डिग्रीज, अब ये 1080 तो ज़ीरो होता है, तो 0 माइनस 30 हो गया। cot माइनस 30 में माइनस बाहर आ जाता है, cos और sec में पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव होता है, तो माइनस का cot 30 डिग्री आ गया, और cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो -√3 इसकी वैल्यू आ गई। ये हमने कुछ डिग्रीज में किए। अब हम कुछ रेडियन मेजर के एंगल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेडियन में देखें कैसे हो सकता है। सपोज एक क्वेश्चन है cos -13π/3। सबसे पहले तो माइनस को हटा दो अगर माइनस है, cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा ओनली, तो cos 13π/3 आ गया। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि 3 के नियरेस्ट मल्टीपल में ये कहाँ आता है, न्यूमरेटर। 3 के मल्टीपल है 3, 6, 9, 12 और 15। ये 12 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, बट 13 12 के ज़्यादा नियर है। तो 12 कब आया, जब हमने इसको 4 टाइम किया, 3 × 4। तो इसी को हम 12 की हेल्प से स्प्लिट करेंगे। सो आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू cos 4π, 3 × 4 12 होता है, प्लस एक और ज़्यादा है, रिमाइंडर 1 बचा है, तो प्लस π/3। इस तरीके से इसको स्प्लिट किया। एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको हमने मिस फ्रैक्शन में कर दिया है। अगर 13/3 होता तो इसका कन्वर्जन क्या होता, 4:1/3। हमने इसको इस तरीके से बदल दिया। अब 4π यानी कि इवन पाई, जितने भी इवन पाई हैं, 2π है, 4π है, 6π है, दे ऑल आर इक्वल टू 0। ऑल इवन पाई मीन्स 0, 2π भी 0, तो ये 0 हो गया। cos 0 प्लस π/3 एंड cos 0 प्लस π/3 सिंपली cos π/3, और cos π/3 मीन्स cos 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6, इफ आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ sin -15π/4। तो सबसे पहले तो इस माइनस को ही डील करना है, साइन में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये रह गया sin 15π/4। अब 4 की टेबल देखते हैं। 15 में 4 का टेबल में देखें तो 4, 8, 12 और 16, ये 16 के ज़्यादा पास है, 12 और 16 के बीच में था, तो 16 की हेल्प से इसको स्प्लिट कर देते हैं। माइनस साइन 4 टाइम में जाएगा, तो 4π उससे कम है इसीलिए माइनस आएगा, ज़्यादा होता मान लो 17 होता तो प्लस कर दे। और इसको चेक करने के लिए आप वापस एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सेम एंगल आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आना चाहिए। स्प्लिट आपने ठीक किया है नहीं किया है, चेक करने का तरीका है। 4π इज 0, तो ये हो गया है माइनस साइन 0 माइनस π/4। अगेन साइन नेगेटिव, तो माइनस फिर से बाहर आ जाता है, और माइनस फिर से बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस साइन π/4। ये क्वेश्चन हो गया है। नाउ ऑन दिस बेसिस, अब इस वीडियो में इतना ही। इसके बेसिस पर अब आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक आपको टास्क, एक वर्कशीट, एक क्वेश्चंस का सेट और दूंगा, वो भी आपको करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे टू फाइंड आउट वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स, तो ये भी मैं देता हूँ। एक शीट अभी PDF में अटैच कर दूंगा, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। कोऑर्डिनेट्स को समझिए, एंगल्स को समझिए, एंड देन कन्वर्ट कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।